फाइनली एनटीए ने अपना प्रेस रिलीज जारी कर दिया है, जो कि आज का डेट का है। आप क्लियर आप देखें कि ये 12 मई 2026 है। एनटीए ने ये प्रेस रिलीज जारी किया और उन्होंने कहा अभी तक जो हम लोगों को कन्फ्यूज़न थी कि नीट की एग्ज़ाम रीनीट होगी या फिर जहाँ थोड़ी बहुत गड़बड़ी हुई है उसके अकॉर्डिंग कुछ किया जाएगा, बट फाइनली एनटीए ने इस पर अपना प्रेस रिलीज कर दिया है। एनटीए ने कहा कि इन कंटिन्यूशन ऑफ इट्स प्रेस रिलीज डेट 10th May 2026, the National Testing Agency wishes to inform candidates, parents, and members of the public of the following decisions taken in respect of NEET UG 2026. NTA had on 8 May 2026 referred as matter then under considerations to the Central Agencies for Independent Verifications and necessary actions consistent with its standing commitment to the fair, secure, and credible conduct of the national examinations ensure to it. On the basis of inputs, एनटीए के जो भी पेपर लीक मामला एनटीए के सामने आया तो उन्होंने अपने सेंट्रल एजेंसी को इसको टेस्ट करने को, इसको जांच पड़ताल करने के लिए इसको आगे बढ़ाया। तो कहा इसमें एनटीए ने इस पर क्या कहा कि ऑन द बेसिस ऑफ द इनपुट सब्सिक्वेंटली एग्जामिन्ड बाय एनटीए is coordinations with the central agencies and the investigated findings shared by the law enforcement agencies and the order to the ensure that there is a transparency in the systems. The National Testing Agency, with approval of the Government of India, has decided to cancel the NEET UG 2026 examinations conducted on 3 May 2026 and reconducted the examinations on the dates that will be notified separately. तो ये पैरा में आप देख रहे हैं, पैरा नंबर फर्स्ट में एनटीए ने इस बोल्ड लाइन में स्पष्ट क्लियर कर दिया है कि जो 2026 3 मई को जो हम लोग नीट में इस पर एग्जाम हुई है इसको प्रॉपरली कैंसिल कर दिया जाता है। जो भी उसके इन्वेस्टिगेशंस एजेंसीज थी उसने वहां से कर दिया कि वाकई पेपर लीक मामला हुआ था। और ऑलमोस्ट आप जान रहे हैं कि ये राजस्थान के सीकर सिटी में ऑलमोस्ट जो नीट पेपर गेस करके ऐसा कुछ आया जिसमें ऑलमोस्ट 145 क्वेश्चंस 90 बायो के एंड 45 केमिस्ट्री के क्वेश्चंस में भी ऐसा कुछ लीक हुआ, जिसको लेकर के एनटीए ने क्लियर अपना प्रेस रिलीज करके कह दिया कि जो नीट का एग्जामिनेशन है वो कैंसिल कर दिया गया है और री नीट कंडक्ट किया जाएगा। इसके नोटिफिकेशंस वो जारी करेंगे। सेकंड पैराम में देखिए क्या कहता है, द इनपुट्स रिसीव्ड बाय एनडीए टेकन टुगेदर विद द फाइंडिंग्स शेयर्ड बाय द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज established that the present examinations press could not be allowed to stand. Reconducted examinations dates along with reissued admit card schedule will be communicated through the official channels of the agency in the coming days. जो भी इसका एग्जामिनेशन का डेट आएगा, इसकी एडमिट कार्ड्स आएगी, उसको एनटीए खुद से जारी करेगा। ये कहीं और की बातों में आप ध्यान न दें। The government of India has further decided to refer the matter to the Central Bureau of Investigations, इसको सीबीआई को देने की बात चली है, for a comprehensive inquiry into the allegations therein. NTA will extends cooperations of the bureau and will provide all materials, records and the assistance the inquiry requires. ने कहा कि ये मामला भारत सरकार ने इस मामला को सीबीआई को सौंपने की बात की, जिसको लेकर के एनटीए अपने तरफ से हर कॉपरेशन करेगा। This decision has taken in the interests of students in the recognition of the trust on which the national examination system rests. The agency is conscious that the reconduct will cause real and significant inconvenience to candidates and their families. NTA does not take that consequently lightly. This decision has been taken because the alternative would have caused greater and the more lasting damage for that trust. The registrations data, candidatures and examination centers obtained in the May 2026 cycles will be carried forward to the reconducted examinations. No fresh registrations will be required. आपको कोई अलग से रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। No additional examinations fee will be levied. आपको कोई एग्जामिनेशन फी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
for already paid will be refunded to the students and the exams will be conducting NTA internal this process. Further communications including the reconnect examinations dates and the reissued admit card scheduled will be issued through the official channels of the agency. Candidates and the parents are requested to rely only on these official channels and to register unveiled reports recruiting on the social media. तो क्लियरली एनटीए ने इस बात को कह दिया है कि जो 3 मई को पेपर हुआ था वो पेपर लीक होने के मामले इसमें आए हैं और ये एजेंसियों ने इसको साबित किया है। तो डेट्स वाई एनटीए नीट को कैंसल करता है एंड री नीट की जो जानकारी है वो अपने ऑफिशियल साइट्स के माध्यम से देगा। इसमें बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। हमें जो हमने रजिस्ट्रेशन किया था वो वही रहेगा, आपने जो फी दिया था वही रहेगा, आपको ऐसा कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। आपका सेंटर डेट ये सब फिर से रीएडमिट कार्ड ये सब सारे के सारे एनटीए अपने ऑफिशियल साइट से फिर से जारी करेगा। तो आप एनटीए की साइट्स को कंटिन्यू वॉच करते रहे और कहीं से किसी और जगह का न्यूज़ के अफवाहों के चक्कर में ना पड़े। तो ये पूरा का पूरा ये मामला रहा। अब बात करते हैं हम लोग स्टूडेंट्स रिगार्डिंग से। अब स्टूडेंट्स या फिर टीचर्स अभी कुछ कर नहीं सकते हैं, उनके हाथ में कुछ नहीं है, तो अपने पास बस एक ऑप्शन है कि हम अपने मेहनत में फिर से लग जाते हैं, अपने पढ़ाई के ऊपर फिर से लग जाते हैं। ओके, तो जो स्टूडेंट्स जहाँ कहीं भी है वो स्टार्ट कर दीजिए, अपने PYQs फिर से बनाना शुरू कर दीजिए, अपने शॉर्ट नोट्स ये सब रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। और उस स्टूडेंट्स के लिए भी एक अच्छा मौका है जिनके थोड़े थोड़े मार्क्स से चूक रहे थे। ओके, तो आप फिर से